أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الدرس الرابع उसका जुज़उल अव्वल का अद्दरसुर राबिअ राबिअ कहते हैं फोर्थ को राबिअ मीन्स फोर्थ नॉट फोर फोर के लिए हम कहेंगे अरबआ इंशाल्लाह मैं आपको लिखवा दूंगा कि जो गिनती काउंटिंग अरबिक की होती है वह कैसे होती है। तो ये ऑर्डिनल नंबर है। क्या है? ऑर्डिनल नॉट कॉर्डिनल। ऑर्डिनल नंबर में फोर्थ है ये। अदर्स मीन्स लेसन। अदर्सुर राबिअ फोर्थ लेसन। तो साहब तुम्हें cardinal numbers कौन से? तो this four it's like first, second, third, fourth, but just in Arabic. No. It's a ordinal number. First, second, third, fourth. So Arabi' means fourth. See, I will see you what is the difference between adad rutabi and adad असगर और जरा बन रखी है आवाज cam is on here, so yes, it will not work there. Okay, see here. When we write this वाहिद इस्नैन सीसू के छे नंबर्स इस्नैन सलासा अरबअ अरबअ खम्सा खम्सा वाहिद means one, इस्नैन two, सलासा three, अरबअ four, खम्सा five. Okay, we will take till 5 now. See, and when we say first, second, third, we call in Arabic wahid al-awwal, as-thani, as-salis, الرابع الخامس. Can you feel difference or not? واحد one. الأول first. It's first. It's second. It's third. It's fourth. It's fifth. Got it? واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يعني 1 2 3 4 5. الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. بس it's for male. الأول الدرس it's a male يعني masculine gender. So we say al-awwal, ad-darasul awwal. Okay, see here. Now you can check your book. So staff, the first, second, third, fourth, fifth differs between male and female. No. First, it's a masculine gender. For feminine gender, we not call awwal. We say ula. Al-ula. Okay?
Asani, not Sani, Asaniya. But give it no. Asani for male, Asaniya for female. Yani masculine gender. Masculine gender, I say feminine gender. Like this. Others, it's a masculine gender or feminine gender? Others, Feminine. not feminine. There is Masculine. feminine gender should have this ta. Okay? So it's a masculine gender. जी. के साथ हम ये लाएंगे अद्दरसुल अल अव्वल। अब यहां ये अल अव्वल क्या हो रहा है, इसका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो हमें क्या करना है, दोनों को एक जैसा रखना है, अद्दरसुल अव्वल। बट if it feminine gender like this so means class al marhala, it's a feminine gender or not? There is a sign of the yes, so This it's a is a feminine gender. feminine. It's a feminine gender, so we will say al ula, al marhalatul ula, ad-darasul awwal, al marhalatul ula. So we will take it yani detailed after one lesson or two lesson, but now you should memorize this one. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. It's enough for you now. Okay? Muhammad. जी साहब. इसको समझे कि नहीं समझे बेटा? जी. तो તમે n માં રાખો the which the જેમ 3 માં છે n માં જે the એ તમે that's feminine. Yes, it's a sign of feminine gender. ثلاثة the feminine gender. See here. जी. Which lesson we have now? Ad-darasul rabi', ad-dars male, masculine gender. So we call it ar-rabi', yani fourth lesson. See from first. When we come on, check it now. Ad-darasul al-awwal. Can you see it now? Yani first lesson. Not wahid. We not call wahid. We not call wahid. Wahid is a cardinal number. Cardinal, not ordinal. Ordinal and cardinal. So, ad-darasul awwal, first lesson. Come on. Ad-darasul thani, second lesson. We took this. Ad-darasul thalith, third lesson. And this one, that lesson we are going now, taking now, it's a ad-darasul rabi', fourth lesson. फोर्थ लेसन हमारा किस चीज पर बेस कर रहा है? बेस इस पर कर रहा है कि अरबिक में every word should have dhamma. It should have dhamma. साहब. Yes. जी તમે કીધું الدرس الرابع fourth lesson. તમારે how do you know when to translate that from second word to first word or from first word to second word? Generally we translate from second
second word. Okay, sometime when there is a with adjective we translate from second lesson like this. Al kitabu al jadidu. See here, it's a adjective है ये, और ये नाउन है. तो यहां हम ट्रांसलेट जो करेंगे वो इससे करेंगे, सेकंड वर्ड से. जदीद कहते हैं न्यू को, बोलेंगे न्यू बुक. और जब मुब्तदा खबर होगा, जो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, मुब्तदा खबर यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, लाइक दिस अल किताबु जदीदुन. Now how we will translate? We will translate from the first word. The book is new. The book is new. Can you understand it? Yani when a noun comes with adjective, so we will translate from the second word. And when we found a mubtada and khabar, so we will translate from the first word. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu yani the book. The book is new. Here we will say the new book. The new book. तो न्यू को हम पहले लाएंगे, बुक को बाद में लाएंगे. थोड़ा समझे इसको. हाँ, अब ये मेन चीज जो मैं बताने जा रहा था वो देखिए, जो हमारा लेसन है आज का, ये तो हमारा पुराना लेसन है. यहां देखिए आप, हमने कहा अरबिक में जो वर्ड नाउन होता है, देखिए अल किताबो, बा पे क्या आएगा? पेश आएगा, जम्मा. बा पे जम्मा आएगा. अल किताबो. अल कलामो. किताबो मीन्स क्या होगा? द बुक. अल कलामो द पेन. अल बैतो. अल बैतो मीन्स क्या है बेटा? द हाउस. ओके. आप देखेंगे इस पर भी पेश है, इस पर भी पेश है, इस पर भी पेश है ना. अरबिक में कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं. प्रीपोजिशन जिसको कहा जाता है हुरूफे जर. क्या कहते हैं? हुरूफे जर. और ये हुरूफे जर हम अरबिक में 17 है. कितने? 17. 17 हुरूफे जर हैं. और एक होता है, एक हरफे जर है फी. फी के मीन्स होता है, फी मीन्स क्या होता है? फी मीन्स इन. यस सर, बोलो मोहम्मद. जर कैसे लिखते हैं? क्या चीज? हुरूफे जर. हाँ बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं. ये फी दिख रहा है आपको? ये थोड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा और नीचे लिख देता हूं मैं, कि दूसरी साइड में लिखता हूं ताकि आपको नजर आए. यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा फी. फी हुरूफे जर तो ऐसे लिखेंगे, हुरूफे जर. इंग्लिश में इसको प्रीपोजिशन समझ लीजिए. फी यानी इन. इला. इला. इला किस लिए आता है? टू. मिन. मिन यानी फ्रॉम. सही है. अला, ये क्या है? ऑन. ठीक है. फी हो गया, इला हो गया, मिन हो गया, अला हो गया. इतना ही लेते हैं अभी, समझ लीजिए. एक बा आता है तो उसको बाद में लेंगे. यहां पे देखिए, अला यानी ऑन.
min from ila to fi in। करता क्या है कि जब ये नाउन पर आएगा, ये नाउन पर ही आएगा, ये याद रखें, वर्ब पे नहीं आएगा, नाउन से पहले आएगा। और ये करता क्या है, जब ये नाउन पर आएगा तो ये लास्ट में पेश निकला नहीं है, इसको क्या कर देगा, जेर कर देगा, कसरा कर देगा। जैसे अगर हम फी लिखेंगे ना तो आएगा फिल कुराने, फिल अल कुरानो था, अल कुरानो होता है ना, अल कुरानो कहेंगे फिल कुराने। ये चेंज किसने किया, इस फी ने किया। ठीक है, कि इसके पेश को किससे चेंज कर दिया, जेर से चेंज कर दिया। मीनिंग क्या हो जाएंगे, मीनिंग होगा इन द कुरान, इन द कुरान। साहब यस, अब हुरूफ जर के, does that mean के all prepositions which are 17 or does it mean के specific prepositions? no, all is prepositions, but it's a meaning change in English. So but what preposition do in the English, huruf jar, the same work do in Arabic. Okay, so to is it preposition to? No. Yes. Yes. But from it's not preposition, but when we use it, so we use it, yani from starting we use min, to distant destination we use ila. Okay, starting the journey from min, ये इला। जैसे रसूल की हदीस है, मशहूर हदीस है, उत्तुलुबुल इल्मा, क्या है, उत्तुलुबुल इल्मा मिनल महदे इलल लहद। क्या होगा, उत्तुलुबुल इल्मा मिनल महदे इलल लहद, यानी तुम इल्म को हासिल करो गहवारे से लेकर कब्र तक। ठीक है, सो इट्स टेक अ डेस्टिनेशन, फॉर डेस्टिनेशन यू यूज इला। आप यूज करेंगे, मसलन आप कहेंगे मोहम्मद साफरतो, साफरतो यानी मैंने जर्नी की, साफरतो मिन लंदना, लंदना मिन लंदना इला अल हिंद, यानी इंडिया। यानी ये आई journey from London to India. So see, may you now focus when we huruf jar come on noun, on ism, the last zamma on the last letter is going to change to kasra. Now notice in the book al bayto, यहां देखिए अल बैतो पे क्या आया, पेश आया कि नहीं आया है, जम्मा आया है। लेकिन जैसे ही फी आया, इसने कहा फिल बैते, फी के माने क्या बताया मैंने, इन के, इन यानी इन द हाउस। अल मक्तबो मीन्स द टेबल, द स्टडी टेबल। अलल मक्तबे, अला माने क्या मैंने बताया आपको, अला माने ऑन द स्टडी टेबल। क्या मीनिंग होंगे, ऑन द स्टडी टेबल। अल मस्जिदो, बस इस चेंजिंग को आप मार्क कीजिएगा, जो चेंजिंग इसमें हो रही है। ठीक है, ये जो चेंज हो रहा है कि ये पेश किससे कन्वर्ट हो गया, ये देखिए जेर आ गया यहाँ पे, किसकी वजह से आया, कौन किसने किया ये काम, तो ये जो प्रीपोजिशन आया फी, इसके माने किसके हैं, इन के, इन, और अला माने क्या है, ऑन। फिल बैते इन द हाउस,
और अलल मकतबे यानी ऑन द स्टडी टेबल। अल मस्जिदो मीन्स मस्जिद, फिल मस्जिदे क्या मीनिंग हो जाएंगे मोहम्मद? in the masjid. वेरी गुड। अस्सरीरो अला सरीरे, तस्नीम बताइए क्या हो जाएगा? अला सरीरे क्या होगा? On the bed. ऑन द बेड, वेरी गुड। अब आइए देखते हैं, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो इसका यूज कैसे करना है। अब इसका यूज ऐसे करना है, आईना, आईना माने जानती हैं क्या है? आईना माने है वेयर। आईना मीन्स वेयर, WHER, सही है, वेयर, WHERE, वेयर। आईना मुहम्मदुन यानी वेयर इज मोहम्मद। आईना मुहम्मदुन, वेयर इज मोहम्मद। कहा हुआ फिल गुरफते, हुआ मीन्स क्या है? ही, हुआ यानी ही। और यहां पे आया है हिया, हे यानी शी। देखिए आईना मुहम्मदुन, वेयर इज मोहम्मद। हुआ फिल गुरफते, गुरफा कहते हैं रूम को, यानी ही इज इन द रूम। ओके। व आईना यासिरुन, व आईना यासिरुन एंड क्या क्या कहा मोहम्मद? जी साहब, गुरफा मतलब कि any room के like के No, is it any like specific room because it's a marafa, alif lam, okay? Because we translated he is in the room, okay? जी साहब, but गुरफा, does that mean room or does that mean a certain type of room like bedroom? Certain type of room that we know, I know and you know, okay? व आईना यासिरुन यानी जब अलिफ्लाम लग जाता है ना तो अलिफ्लाम सर्टेन बना देता है किसी चीज को, और जब कॉमन रहता है, नकिरा रहता है, तो वो अनसर्टेन रहता है। फिर एनीवन, समझ गए? व आईना यासिरुन यानी वेयर इज यासिर, एंड वेयर इज यासिर? का हुआ फिल हम्मामे यानी ही इज इन द बाथरूम। Hammam means bathroom. He is in the bathroom. Wa aina amina. What we translate it, Muhammad? Wa aina amina. Where is Amina? Where is Amina? Very good. Hiya fil matbakhe. Translate it. Try to translate. She is in the mutbakh. Matbakh. What is matbakh? Bedroom? No. Matbakh, kitchen. Kitchen. Matbakh means kitchen. अब देखिए, ऐनल किताबो, तस्लीम यू ट्रांसलेट इट। Where is the book? Where is the book? हुआ अलल मक्तबे। अब यहां पे देखिए, अब यहां ही शी का ट्रांसलेट नहीं करेंगे। Why? Because for goods we not use he or she, or use, I think we are not going to use he she for the goods, okay? So we will translate here huwa alal maktabe, it's on the table, okay? It's on the table. wa तो ainas, हाँ बोलिए। तो हुआ जिम તમે person સાથે હો તો તમે he બોલો, પણ पहले હુआ તમે ચીજ સાથે હો તો પછી તમે કહો। it's बोलो તમે।
इट्स ना ट्रांसलेशन करो तो इट्स गुड फॉर अस, बिकॉज आई एम नॉट श्योर वी यूज ही और शी फॉर गुड्स. आई एम राइट? जी. हाँ. So for person we will use he or she. For goods we will translate its. So أين الكتاب? Where is the book? هو على المكتب. It's on the table. وأين الساعة? अब यहाँ पे देखिए किताब मेल था ना, किताब मैस्कुलिन जेंडर है, तो हमने इसके लिए हुआ का यूज किया. और अस्साअतो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है? तो she. Feminine. It's a फेमिनिन. feminine. हाँ. साआ मान मीन्स होता है वॉच. वअैन अस्साअतु, एंड वेयर इज द वॉच? कहा हिया अला सरीरे, यानी इट्स ऑन द बेड. Bed. इट्स ऑन द बेड. और ये एक तस्वीर दी है, एक पिक्चर दी हुई है यहाँ पे. ये पिक्चर किसकी है? अल मतबखो. किसकी है ये? किचन की. अल मतबख मीन्स द किचन. ये पिक्चर जो दी हुई है अल मतबख की दी हुई है. अब यहाँ पे तमारीन में आ जाइए मौला, तमारीन में आइए मोहम्मद. कह रहे अजिब, अजिब यानी जवाब दीजिए. अनिल अस्इलतिल आतियते, आने वाले सवालों के. अजिब अनिल अस्इलतिल आतियते, यानी अब आतिया देखें, अस्इला का क्या है? एडजेक्टिव है. ये नाउन है और आतिया इसका एडजेक्टिव है. अजिब आंसर, अजिब मीन्स आंसर. अन भी देखिए, अन भी क्या है जान रहे हैं? ये भी हरफे जर है. इसी हरफे जर होने की वजह से अस्इला पे क्या आ रहा है? ये जेर आ रहा है. ये कसरा जो आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? अन की वजह से आ रहा है. देखिए कुरान में भी अगर आप नोट करेंगे तो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र. फी लैलतिल क़द्र, फी लैलतिल क़द्र. फी ने क्या किया? लैला पे जेर दिया कि नहीं दिया? फी लैलतिल क़द्र. वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र. अब यहाँ लैलतों पे देखिए क्या आ रहा? पेश आ रहा है. तो हरफे जर जब आता है तो हरफे जर अपने बाद वाले नाउन पे क्या कर देता है? जेर दे देता है, कसरा दे देता है. सही है? तो अन हरफे जर है और इसके बाद वाले नाउन पे क्या आ रहा है? जेर आ रहा है. तो अजीब अनिल अस्इलतिल आतियते, सही है? यू आंसर द कमिंग क्वेश्चंस. क्या है? ऐनल किताबो, क्या माने होंगे ऐनल किताबो के? वेयर इज द बुक? वेयर इज द बुक? सो वी विल सी हियर, वेयर इज द बुक? हुआ अला मकतबे. हुआ अलल मक्तबे. ट्रांसलेट इट. How will you translate? It's on the table. It's on the table. Very good. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. क्या ट्रांसलेट होगा तस्नीम? Where is Muhammad? Where is Muhammad? So where is Muhammad? Answer from here. He is in the. First you say in Arabic, then translate it into English. हुआ फी अल गुरफते. ना मिला के कहिए. हुआ फिल गुरफते. हुआ फिल गुरफते. हाँ. He is in the. He is in the room. गुरफा मीन्स रूम. यहाँ देखिए एक और सवाल है. ऐना साअतु. तो सो यू कैन आंसर और नॉट इट.
ऐना यासिरुन, ऐना आमिना, यहां तक के क्वेश्चन में कोई मुश्किल तो नहीं आएगी, सबके आंसर यहां मौजूद हैं, ठीक है। ऑल आंसर इज अवेलेबल हेयर। सी, यासिर कहाँ है, तो यासिर का जवाब यहां है क्या, ऐना यासिरुन हुआ फिल हम्माम। सी हियर, ऐना आमिना, वेयर इज आमिना, सी हियर वेयर इज आमिना, वैना आमिना हिया फिल मत्बख। फिर यहां देखिए, अब यहां पे देखिए, आमीना तू फिल गुरफते, अब यहां से चेंज हो गया, अब यहां यस नो क्वेश्चन वाला क्वेश्चन आ गया है। कहा आमीना तू फिल गुरफते, so what we will translate it, we will translate Is Amina in the room? हाँ, is Amina in the room, so where is Amina, तो हम कहेंगे no, Amina is in the kitchen. So how we will say in Arabic, we will say la, Amina is in the kitchen, yani what in Arabic, Amina la, Amina fil matbakhe. Okay, I'm right, you can understand it easily. See, Aminatu fil ghurfati, yani is Amina in the room, we will answer la, yani no, la yani no, Amina fil matbakhe, no, Amina is in the kitchen. So can you answer like this or not, Muhammad? जी साहब। Very good. See next question, ayasirun fil matbakhe, क्या ट्रांसलेशन होगा तस्नीम? Is Yasir in the kitchen, Is Yasir in the kitchen? so where is the Yasir? Yasir fil hammam, so कैसे आंसर करेंगे इसका बताइए। He is in the bathroom. नो, पहले कहिए नो, तो नो के No, लिए हम क्या लाएंगे, La. ला, अरबिक में ला हुआ फिल हम्मामे, La huwa fil hammam. हाँ, यानी नो ही इज इन द बाथरूम। ओके नाउ, अब मन मीन्स क्या होता है, ये मन है, मन क्या है, मन, मन मीन्स होता है हु। अब यहां पूछा जा रहा है मन फिल गुरफते, यानी हु इज इन द रूम, हु इज इन द रूम, रूम में कौन है, देखिए यहां पे कौन है रूम में, मुहम्मदुन, मुहम्मदुन इज इन द रूम, so what you answer, we will going to answer it, मन को हटा दीजिए, मन की जगह क्या लाएंगे, मुहम्मदुन, ओके, मन की जगह हटा के क्या लाएंगे, मुहम्मदुन फिल गुरफते, यानी मुहम्मद इज इन द रूम। व मन फिल हम्मामे, क्या ट्रांसलेशन होगा मुहम्मद, Muhammad translated man fil hammam, man means होगा who, now you translate, if you find any problem tell me।
Who is in the hammam? Who is in the bathroom. bathroom? Who is in the bathroom? So who is in the bathroom? Answer it. Yasir. हाँ, Yasirun. यासिरुन फिल हम्मामे. यासिरुन फिल हम्मामे. अब माजा मीन्स क्या होता है? माजा मीन्स होता है व्हाट. माजा मीन्स व्हाट. माजा अलल मक्तबे, व्हाट इज ऑन द स्टडी टेबल. माजा अलल मक्तबे, व्हाट इज ऑन द स्टडी टेबल. सी हियर इन द दर्स, इन द लेसन, what is on the study table? Al kitabu. So we will, in answer we will remove mada. We will say al kitabu alal maktabe. Okay, and like this, mada ala sarire, what is on the bed? So we will remove mada and we will say as-sa'atu ala sarire. Yani the watch is on the bed. Now this exercise you should complete it, answer it clearly. And now second one, what is we should do? You should do here. Iqra waktub, yani you read and you write ma'a dhabti awakhir al kalimat. सही है. लास्ट में किस तरह से आएगा वो आपको यहाँ पे वो करना है. जैसे अल मदरसतो कहोगे, अल मदरसता कहोगे, अल मदरसते कहोगे, क्या कहोगे यहाँ पे? लास्ट में क्या आएगा? क्या सही है? अल मदरसतुन सही है, अल मदरसतो सही है, कि ता सही है, कि ते सही है? मैंने क्या कहा? अरबिक में हर वर्ड पे क्या आएगा? अल मदरसतो. लेकिन ये वाला क्या होगा? फिल अदरसते. फिल मदरसते, फिल बैते. ठीक है, इस तरह से आप जेर जबर लगा के इसको लिखेंगे. ठीक है, यहां पे मैं रुकता हूं यहां तक, चूंकि मेरा टाइम अभी फिनिश हो रहा है, मुझे जाना होगा वहां पे. तो यहां मैं रुकता हूं. इंशाअल्लाह इसको दोनों एक्सरसाइजेस को आप कर लीजिएगा, दर्स को याद कर लीजिएगा. ठीक है, और जैसा होगा कल आप लोग अगर चाहेंगे तो दर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, आफ्टर टुमारो कर सकते हैं, ताकि जो इसका लेसन है, बाकी एक्सरसाइजेस है, उसको भी हम लोग पूरा कर लें. ठीक है बेटा? जी सर. अल्लाह. चलें.